السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گائز، آج کی کہانی ہے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک تھا ریبٹ، خرگوش کا نام تھا پیٹر خرگوش جنگلی خرگوشوں میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ سب جانور اسے بہت پسند کرتے تھے۔ پیٹر کی کچھ عادتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے جنگل کے تمام جانور اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک تو اس کا اخلاق بہت اچھا تھا اور وہ سب لوگوں کا خیال بھی رکھتا تھا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کا خیال رکھتا تھا۔ اگر کسی کے پاس خوراک نہیں ہے تو اس کو خوراک لا کے دیتا، وہ اپنی گاجریں بھی ان کو دے دیتا تھا۔ اس لیے وہ جنگل میں بہت پسندیدہ تھا۔ تمام جانور پیٹر سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن پیٹر کی نانی نے کہا، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ تمام خرگوش وہاں اکٹھے تھے۔ پیٹر کی نانی کہانی سنانے لگی۔ پیٹر نے کہا، نانی آج ایسی کہانی سنائے جو ہمیں ہمیشہ یاد رہے۔ اس کی نانی نے کہا، میں آج آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز کی کہانی سناتی ہوں۔ اس کہانی میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ قیمتی چیز کیا ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، اور کہانی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ سب خرگوش ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور سوچنے لگ گئے کہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ یہ دنیا کی قیمتی چیز کیا ہے۔ ان خرگوشوں میں ایک سب سے چھوٹا خرگوش بیٹھا تھا۔ اس نے چیخ کے کہا، مجھے پتہ چل گیا، سونا سونا سونا، گولڈ۔ نانی نے کہا، نہیں بیٹا، گولڈ نہیں ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز گولڈ نہیں ہے۔ تو پھر ادھر بیٹھے وہ سوچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے ادھر ادھر۔ تو ایک مینڈک آیا۔ مینڈک نے کہا، مجھے پتہ چل گیا، میں جانتا ہوں دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ نانی نے کہا، بیٹا بتائیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میں نے کہا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز سونا نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ۔ نانی نے کہا، نہیں، ڈائمنڈ سب سے قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے قیمتی چیز کی کہانی، یہ ہماری جب تک آپ لوگ اس کو مجھے بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تب تک یہ کہانی جاری رہے گی۔ یہ کہ ایک پہلی بھی ہے، کہانی بھی ہے۔ باقی جو جانور وہاں بیٹھے تھے وہ سوچ رہے تھے نانی کی بات کو کہ کیا ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ پیٹر ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے، لوگوں کو دوسرے جانوروں سے پوچھے، کوئی کچھ چیز بتائے، کوئی کہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ والا بڑا درخت ہے، کوئی کہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز خوبصورت جنگل ہے۔ ادھر ایک بلی تھی، بڑی خوبصورت براؤن کلر کی بلی۔ اس نے آ کے نانی کو کہا، سب سے قیمتی چیز تو میرا حسن ہے۔ سب اس پہ ہنسنے لگ گئے۔ سب کہنے لگے، بلی نے کیا بات کی ہے کہ سب سے قیمتی چیز میں ہوں۔ وہ بلی ہے بہت خوبصورت، اصل میں وہ قیمتی اس پہیلی اور اس کہانی کا وہ حصہ نہیں تھی، کیونکہ وہ قیمتی چیز وہ نہیں تھی جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر کافی دیر ہو گئی۔ نانی ماں نے کہا، بچوں سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، اس پہیلی کا جواب آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھ کے آئیے گا، کل پھر مجھے بتانا کہ اس کا کیا جواب ہے اور یہ کیا چیز ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ سب اسی جستجو میں مصروف تھے۔ پیٹر کو سوچے بار بار سوچتا رہا، اس کو سمجھ نہ آئے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ باقی سارے جانور کہیں اگر پیٹر خرگوش کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو ہم تو ویسے بھی اتنے سمجھدار نہیں ہیں،
तो हमें कैसे समझ आएगी कि ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। दिन सारा जानवर इधर उधर जंगल में भागते फिरते रहे, अपने बड़ों से भी पूछा, दूसरों से भी पूछा, एक दूसरे से पूछे कि जो लोग उस कहानी में उधर रात को पहली रात को नहीं थे, उनसे भी जाके पूछा कि ये आप बताएं कि इसमें इसका जवाब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। पीटर ने सोचा कि मैं अपनी अम्मी से जाके पूछता हूँ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। जब पीटर अपनी अम्मी के पास जा रहा था, वो सीधे रास्ते से कभी नहीं जाता था, कभी किसी रास्ते से जाता, कभी किसी रास्ते से जाता, ऐसे उछलता कूदता जा रहा था। जाके वो झाड़ियों में फंस गया। उसके जो बाल थे वो झाड़ियों के कांटों में फंस गए। चीखने लगा, कहता कि मुझे कोई बचाए, मुझे छुड़ा ले, मेरे जो बाल ये झाड़ियों में उलझ गए हैं। वो कांटेदार झाड़ियाँ थी। वो परेशान हो रहा था। कोई जानवर करीब भी ना आए, कहते हैं कि अगर हम जाएंगे करीब तो ये हम झाड़ी में फंस जाएंगे तो निकल नहीं सकेंगे। एक लड़का वहाँ आता है, वो जब देखता है उसको तो वो झाड़ियों से उसे निकालता है। वो कहता है तो पीटर वो कहाँ जा रहा था, ऐसा तो है तो नहीं, तो फिर इन झाड़ियों में कैसे फंस गया। आज तक तो तेरे साथ ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। तो रात हमें नानी कहानी सुना रही थी। कहानी के दौरान एक पहेली थी और पहेली का मतलब समझने के लिए, उस सवाल का जवाब समझने के लिए मैं अपनी माँ के पास जाऊँ। और मैंने कहा अच्छा उछलते कूदते खेलते चला जाता हूँ, तो अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है रात होने में, तो इसलिए मैं इधर जब झाड़ियों के करीब से गुजरा तो मैं यहाँ से झाड़ियों में फंस गई। उसने आराम से उसे निकाला और कहा कि जाएं आप अपने घर। जब वो अपनी माँ के पास गया, पीटर ने अपनी माँ से पूछा कि बताएं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। उसकी माँ ने भी उसे सीधी तरह से जवाब नहीं दिया। पहले तो उससे पूछा कि ये इसका आप ये क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा रात नानी अम्मा ने कहानी सुनाई थी और कहानी के दरमियान में ये एक पहेली आ गई और इसी पहेली का मतलब के अंदर ही कहानी है। दुनिया की कीमती चीज़ आपको पता नहीं है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। लेकिन नहीं, मुझे तो नहीं पता। उसने प्यार भरी नज़रों से अपने बेटे को देखा, उसे प्यार किया और उसे कहा मैं आपको सीधी उसका जवाब नहीं देती, आपको इसका क्लू बताती हूँ, आप खुद फिर समझिएगा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। पीटर ने कहा ठीक है, मुझे बताएं। उसने कहा दुनिया की सबसे कीमती चीज़ वो ऐसी कीमती चीज़ है जिसकी खातिर लोग खुशी खुशी अपनी जानें दे देते हैं। वो तो और परेशान हो गया। उसने कहा कि ये कैसी चीज़ है जिसकी खातिर लोग अपनी जान भी दे देते हैं, जो सोना भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, डायमंड भी नहीं है, हमारे दरख्त नहीं है, हमारा जंगल भी नहीं है, तो वो क्या चीज़ है। तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो लोग पाने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। सारा दिन वो सोचता रहा, कभी तो वो मेंढक के पास जाए, कभी किसी जानवर के पास जाए, कभी किसी जानवर के पास जाए। उसने सोचा कि अब मैं अपनी टीचर के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ। पीटर की टीचर थी, वो उसके घर गया। टीचर से कहा कि टीचर मुझे ये बताएं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। वो कीमती चीज़ ऐसी है कि मेरी नानी ने ये हमें सवाल किया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि दुनिया की कीमती चीज़ क्या है। कि वो हमारी कहती है सोना भी नहीं है, डायमंड भी नहीं है, दरख्त भी नहीं है, जंगल भी नहीं है। तो फिर मैं अपनी माँ के पास गया तो मेरी माँ ने मुझे कहा है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ वो है जिसकी खातिर लोग अपनी जानें भी दे देते हैं। वो मुस्कराई और कहा कि बेटा दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है आज़ादी। मैंने कहा वो कैसे।
दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आज़ादी कैसे हो सकती है। तो टीचर ने उसे कहा, बेटा देखें, अगर आप इस जंगल में फिर रहे हैं, कहीं आप फंस जाते हैं, आपको वहीं पे कैद में या कहीं आप जहाँ झाड़ियों में फंस गए हैं, निकल नहीं सकते, तो आपको कोई वहाँ पे सोना ला दे, डायमंड ला दे, जो कुछ भी ला के देगा, क्या आप खुश हो जाएंगे? दुनिया की हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाए लेकिन आपको आज़ादी ना मिले, तो क्या आप खुश होंगे? उसने कहा, सोचा कुछ चंद लम्हे, तो उसने फिर बताया कि हाँ, मैं तो आज वो ऐसे झाड़ियों में फंस गया था, तो वहाँ से मेरा निकलना मुश्किल हो गया था, तो मैं वहाँ बहुत परेशान हुआ था। तो एक लड़के ने आके मुझे निकाला था, तो मेरे बाल भी वहाँ फंस गए, मेरे कान भी मेरे लंबे कान भी मेरे काम ना आ सके। तो जब उसने मुझे वहाँ से निकाला तो मुझे तब सुकून मिला। ठीक, टीचर आप सही कह रही हैं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आज़ादी है। लोग आज़ादी पाने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, ये आपने मुझे सही बताया। तो जैसे ही शाम हुई, रात को नानी अम्मा के पास सब जानवर इकट्ठे हुए, खरगोश भी आए, मेंढक भी आए, बिल्लियाँ भी आई, सब आए। जंगल के जो जानवर थे वो सारे उधर आए, छोटे मोटे जानवर। नानी अम्मा ने पूछा, बताएं कौन इस पहेली का जवाब देगा, इस कहानी का मतलब कौन बताएगा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। इसमें पीटर ने फटाफट बुलंद आवाज़ से कहा, नानी अम्मा, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आज़ादी है। वो बहुत खुश हुई, सब जानवर जंप लगाने लग गए, तालियां बजाने लग गए। नानी अम्मा ने जब कहा कि पीटर ने सही कहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आज़ादी है। फिर पीटर ने अपनी स्टोरी भी बताई कि किस तरह से मैं कैद हो गया था और फिर छूटा था, तो लड़के ने मुझे आके वहाँ से निकाला था। तो मुझे जब उससे निकाला तो फिर मुझे सुकून मिला। इस तरह से सब लोगों को पता चल गया कि दुनिया की सबसे कीमती नेमत आज़ादी है। ये कहानी न सिर्फ बच्चों के लिए एक दिलचस्प तफरीह थी, बल्कि आज़ादी की अहमियत का एक गहरा सबक भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।